Okay, now in a chapter 7, P block element part 2, lecture number 10, 7.6 in your NCERT textbook. Phosphorus, allotropic forms of phosphorus. यहाँ पे फॉस्फोरस की बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से एलोट्रॉप्स यहाँ पे मिलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, फाउंड इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म बट मेनली नोन in our textbook white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Maybe this question asked, write a note on allotropic form of phosphorus. Okay, so you have to write perfectly. So here first of all white phosphorus, in white phosphorus translucent white waxy solid. What is a translucent? Transfer, we can say that we can so transfer mode, you know that transfer mode means what? Just like glass, translucent white waxy solid. Okay, so here you have to remember translucent white waxy solids. Second thing, poisonous, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, remember this, and glows in dark. What is meaning of that? In dark, chemiluminescence means chemically जो प्रस्फुरण होता है वो हमें मिलता है, यानी कि वो झपकारो कहते हैं उसको, लाइट देता है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. सो वो chemiluminescence आपको याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब उसका रिएक्शन P4 plus 3 moles of NaOH, अगर फॉस्फोरस को, व्हाइट फॉस्फोरस को पानी के साथ किसके साथ डिसॉल्व करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, फॉस्फाइन, और दूसरा मिलेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. तो यू रिमेंबर दिस, P4 plus 3 NaOH plus 3H2O, it gives PH3 plus 3 NaH2PO2, and this reaction is disproportionate reaction because this phosphorus converted into phosphine as well as sodium hypophosphite. So here this P and this P, they undergoes in different way. They undergoes in reduction reaction and oxidation reaction. Both reaction takes part, and that's why we can say that here this reaction is disproportional reaction. What is the shape of this? Shape is very simple. You have to draw this triangle and then you have to put here phosphorus, then you join this line. So here phosphorus, phosphorus, phosphorus and phosphorus, and here angle is 60 degree. Very simple. So it is a discrete tetrahedral, exactly not tetrahedral but discrete tetrahedral. It is a less stable and therefore more reactive. जो less stable होता है वो reactivity उसकी क्या होती है, ज्यादा. Then other solid phases under normal conditions because of angular strain in the P4 molecule where the angle are 60 degree. ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, because जो लिखा है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. Angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 degree. Only 60 degree. You remember this. This is a very important topic. Readily catches fire in air. आप जानते हो मैस्टिक को आप जलाते हो तो मैस्टिक को देखा होगा, ऊपर का जो पार्ट येलो होता है, रेड होता है, और जो स्टिक में होता है वो भी रेड होता है. उसको आप क्या करोगे, स्टिक को आप उस पे पास करोगे, यानी कि कोलोइड्स करोगे, तो वो क्या होगा, रेडिली कैचेस फायर, तुरंत क्या होता है, फायर होता है. आपने मैस्टिक जलाई होगी तो वो ये catches fire in air to give dense white fumes of P4O10. P4 plus 5O2 it gives P4O10. तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे white phosphorus, translucent white waxy, poisonous, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, and glows in dark, chemiluminescence. P4 plus 3 moles of NaOH plus H2O, अगर याद नहीं रहता तो P4 plus NaOH plus H2 कर दीजिए, उसके बाद में एरो, उसके बाद में PH3, उसके बाद में Na2 NaH2PO2.
सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक बार पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो आपको याद रखना पड़ेगा NaH2PO2। तो ये फॉर्मूला किसी है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की। उसके बाद में आपको एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ट्रायंगल लगा के एक यहाँ पे फास्फोरस लगा दीजिए, सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या आएगा 60 डिग्री है। तो ये रेड व्हाइट फास्फोरस का क्या है, व्हाइट फास्फोरस का हमें ले लिया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेजेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। आपने देखा होगा कि जो मैस्टिक होती है उसमें व्हाइट भी होता है और रेड भी, यानी कि व्हाइट जो होता है वो क्या होता है, ग्लोस कर रहा है, लेकिन व्हाइट एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस होता है, उसमें रेड कलर का केमिकल भी ऐड किया जाता है, इसलिए आपको रेड लगेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा रेडिली कैचेस फायर इन एयर। मैंने बताया मैस्टिक में रेड होता है, लेकिन वो रेड फास्फोरस नहीं, क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस। सही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा रेडिली कैचेस फायर इन एयर to give dense white fumes of P4O10. P4 plus 5O2 it gives P4O10. तो आपको ये व्हाइट फास्फोरस के बारे में पता चल गया। अब रेड फास्फोरस के बारे में आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। व्हाइट फास्फोरस if we heat at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days, at that time it produce red phosphorus। यानी कि रेड फास्फोरस कैसे बनाया जाता है, तो व्हाइट फास्फोरस ले लीजिए, उसका 573 केल्विन इनर्ट एटमॉस्फेरिक फॉर सेवरल डेज, इनर्ट एटमॉस्फेरिक रखिएगा और सेवरल डेज पे आप रखिए, तो क्या मिलेगा, रेड फास्फोरस। अगर रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर के साथ हीट करोगे टेंपरेचर के साथ, तो सीरीज ऑफ फेज ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड। ये फिगर भी बहुत ही सिंपल है। आपको जो ट्रायंगल ड्रॉ किया इसमें ये P P और ये P और ये P, यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन करना है, इसको मत ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलीमरिक P4 what is the form of tetrahedron linked, this type of structure is obtained। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलेगा। Another possesses iron gray luster, this red phosphorus possesses iron gray luster। Another odorless and non poisonous, ये odorless भी है और हानिकारक नहीं है, नॉन पॉइजनस है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, रिमेंबर दिस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। केमिकली लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है व्हाइट फास्फोरस के हिसाब से। इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, यहां पे देखिए डिफरेंस में, ग्लो इन द डार्क या डज नॉट ग्लो इन द डार्क, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, रेड फास्फोरस, तो व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन टेंपरेचर के हिसाब से इनर्ट एटमॉस्फेयर आपको वहां पे निकालना है, यानी कि इनर्ट गैस आप ऐड करोगे फॉर सेवरल डेज, तो आपको क्या मिलेगा, रेड फास्फोरस। अगर रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर के साथ टेंपरेचर देते हो यानी हीट करते हो, तो सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस आपको मिलेगा। और ये है पॉलीमरिक टेट्राहेड्रॉन लिंक्ड, यानी कि जो टेट्राहेड्रा है उसके साथ फास्फोरस फास्फोरस लिंकिंग होगा, ये और ये नहीं होगा, ये होगा। सही, आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉलीमरिक, पॉलीमरिक का मतलब क्या होता है, 1 2 3, यानी कि ये अटैच ही है, यहाँ कंटिन्यू चेन ही है। पॉलीमर के हिसाब से आप जानते हो, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, ऐसे ज्वाइन होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, रेड फास्फोरस। possesses iron gray luster, ओके, क्या बनाएगा, आयरन ग्रे लस्टर भी बनाता है। odorless नॉन पॉइजनस, आपको याद रखना पड़ेगा, odorless का मतलब क्या है, इसकी स्मेल नहीं आएगी। नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस का मतलब वो पॉइजनस नहीं है। insoluble in water and carbon disulfide, केमिकली लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है व्हाइट फास्फोरस के हिसाब से। इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, तो आपको व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस के बारे में पता चल गया। थोड़ा लिख के प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कितनी बार पूछा गया है। अब बाकी रहा लास्ट वाला, ब्लैक फास्फोरस। यहां पे याद रखिए ब्लैक फास्फोरस के 2 फॉर्म्स हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब पहला हम पढ़ेंगे अल्फा ब्लैक फास्फोरस, उसके बाद में बीटा ब्लैक फास्फोरस, वो कैसे बनते हैं। तो यहां पे देखिए रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेंपरेचर
में इन सील्ड ट्यूब में रखते हैं तो क्या मिलेगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस। फिर से रेड फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन टेम्परेचर तक हम ले जाते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस हमें मिलता है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैन बी sublimed in air and has opaque monoclinic। sublime का मतलब क्या होता है? solid form is directly converted to vapor form और gaseous form। तो sublimation आप जानते हो वही है sublime in air and has opaque। opaque का मतलब पास नहीं होता, सही है? opaque उसको कहते हैं कोई भी चीज उसमें से पास नहीं होती। ग्लास को अगर व्हाइट कलर का कोई कलर लगा दे तो उसमें से लाइट पास नहीं होगी, किस तरीके से? opaque monoclinic और rhombohedral crystal। rhombohedral crystal it does not oxides in air, यानी कि it does not oxidize नहीं होगा एयर में। so white phosphorus ये हो गया पूरा अल्फा ब्लैक फास्फोरस के बारे में। अब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा? बीटा ब्लैक फास्फोरस। It does not burn in air up to 673 Kelvin। फिर से एक बार, ब्लैक फास्फोरस उसका क्या आएगा? अल्फा और बीटा दो फॉर्म लगा दीजिए। एलोट्रोपिक फॉर्म यानी कि ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म है, अल्फा ब्लैक फॉर्म, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड अनदर इज बीटा ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर में इन सील्ड ट्यूब अगर आप रिएक्शन करते हो तो क्या मिलेगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैन बी sublimed in air and has opaque monoclinic और rhombohedral crystal। मोनोक्लिनिक का मतलब क्या है? rhombohedral का मतलब क्या है? अगर आप सल्फर के एलोट्रोप देखोगे तो पता चलेगा। तो वो क्या है? It does not oxidize in air। ओके, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। व्हाइट फास्फोरस 473 केल्विन और हायर प्रेशर, तो इसका टेम्परेचर 473 केल्विन। यहाँ पे बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा और उसके बाद में इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। एक बार फिर से एक बार थोड़ा समरी ले लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, उसमें जो कॉमन है वो हम देखेंगे, यानी कि कौन सा टॉपिक आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक ये है कि poisonous insoluble in water but soluble in CS2 and glow in the dark, ये व्हाइट फास्फोरस में है। तो ये टॉपिक फर्स्ट लिख लीजिए। उसके बाद में रेड फास्फोरस में देखिए odorless non poisonous insoluble in H2 and CS2। ओके, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा? तो वो ब्लैक फास्फोरस में आएगा नहीं। तो रेड व्हाइट और हम पहले डिफरेंस देखेंगे दो में, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पहले ये पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद में उसकी फिगर ड्रॉ कीजिए। दूसरा टॉपिक हो गया, यानी कि दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट में आप याद रखो डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल और यहाँ पे पॉलीमरिक टेट्राहेड्रल लिंक है। तो यहाँ पे एक बात लिखी है, readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। यहाँ पे readily कोई है ही नहीं, glow in the dark, सही है? ये फायर कैच नहीं करेगा, ये फायर कैच कर सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, जो है वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकलता है, गिव डिफरेंस और से डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। अगर 3 मार्क्स का है और अगर आपने 4 पॉइंट्स लगा दिए और 3 पॉइंट लगा दिए तो आपको 3 में से 3 मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर अच्छी तरह ड्रॉ कीजिए, पेन से ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अगर ब्लैक फास्फोरस के बारे में पूछा जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ब्लैक फास्फोरस के कितने फॉर्म में होते हैं? तो अल्फा और बीटा फॉर्म में। वो कैसे बनते, प्रिपेयर्ड होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस तरीके से ये फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? having the same element but whatever the forms are different, white, red and black color is different, and that's why it is considered as allotropic form। allotrops का मतलब क्या आप जानते हो, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।